required. We normally required कि fluid moves out from the vessel to the interstitium ताकि क्या हो सके, so they are able to transfer the nutrients and the oxygen to the tissue. Blood से nutrients and for the transfer of nutrients and for the oxygen we need that this fluid moves out from the vessel. So at the arterial end hydrostatic pressure is increased, वहाँ पे pressure is increased, so fluid moves out taking with along with it the nutrients and the oxygen. Then when there is a movement of fluid outside at the venous end, there is an increased plasma osmotic colloid osmotic pressure. That increased plasma osmotic pressure will drag the water inside towards the vessel. So whatever the fluid moves out, it will be dragged back inside the vessel through the colloid osmotic pressure, and so that fluid that is moved out will again come back towards the vessels, and that fluid comes back to the vessels. It will bring carbon dioxide and the respiratory materials of the उसमें they will come inside the blood, inside the vessel at the venous end. So this circle is keep moving on, और what के जो fluid move out करता है arterial end के ऊपर, venous end के ऊपर, more or less वो जो है वो come inside, or whatever the some fluid quantity, small quantity of fluid that is left in an interstitium, it is taken by the third system, that is the lymphatic system. Lymphatic system वहाँ पे ये वहाँ से जो है moves in करेगा fluid के थ्रू मूव हो जाएगा. अब आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि नहीं आई? बेटा यहाँ तक समझ आ गई है या नहीं कि आपको बेसिकली तीन सिस्टम है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हम वी विल गोइंग टू डू द कॉजेस. व्हाट इज द कॉजेस कि इनमें से किसी भी प्रेशर में कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी, इट विल रिजल्ट इन अ एडिमा फॉर्मेशन. अब आप लोगों को बेटा हो गई है या नहीं क्लियर हुआ? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वीनस एंड के ऊपर, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है. अब इसका जो है ये सारा कुछ जो का बैलेंस रहता है. अब बट व्हेन देयर आर सम conditions, if there is an increased hydrostatic pressure which includes cardiac failure, constrictive pericarditis, so they all causes the obstruction. There is an increased hydrostatic pressure in a venous end. Then arterial end के ऊपर heat है या humoral dysregulation है, they will cause के इसमें increase hydrostatic pressure, और जब increase hydrostatic pressure होगा it will cause the edema. Second force जो important थी, that is our osmotic pressure. तो whether there is a more protein loss, osmotic pressure tissue instead of coming back towards the inside the blood vessel. उसमें आ जाती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, दैट इज द किडनीज की ग्लोमेरोपैथीज है, उसमें प्रोटीन लॉस हो रही होती है, और इन लिवर सिरोसिस प्रोटीन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है. मैल न्यूट्रिशन, अगेन इन मैल न्यूट्रिशन इनटेक डिक्रीज होता है. सो when there is a protein intake is decreased, there is a decrease in osmotic pressure. फिर gastroenteropathies है जिसमें protein loss हो रही होती हैं, again they will cause a decrease in protein concentration. Protein concentration leads to edema. ठीक है जी, ये हमारी हाइड्रोस्टैटिक की ड्यू टू कॉजेज हो गई. फिर हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर के ड्यू टू कॉजेज हो गई. थर्डली हमारी आ जाता है लिम्फेटिक. अगर लिम्फेटिक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, अगेन जो है वहाँ पे जो वट एवर द फ्लूइड जो लेफ्ट बिहाइंड जिसने ड्रेन होना था, दैट विल कीप ऑन, उसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आते हैं डिफरेंट ट्यूमर्स की वजह से, या सर्जिकली आपके लिम्फेटिक रिमूव कर देते हैं. इन ब्रेस्ट कैंसर्स में एक्सिलरी क्लियरेंस, आप पोस्ट सर्जिकली वहाँ पे लिम्फेटिक्स रिमूव हो जाते हैं, तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रही होती है. रेडिएशन से आपके lymphatic फाइब्रोसिस, और दैट विल अगेन रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. सो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की अगर कॉज है, अगेन
जो जो आपने अक्सर ये सुना होगा जी, सोडियम रिटेंशन जो होती है, when there is a sodium retention, तो वो क्या करता है कि आपके साथ उसके साथ कंपल्सरीली वाटर एब्जॉर्प्शन होती है. सो व्हेन देयर इज इंक्रीज सॉल्ट इनटेक, उसमें क्या होगा कि इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी. अगेन जब मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इट विल लीड्स टू द एडिमा फॉर्मेशन. फिर इंक्रीज रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, अगेन उसमें वो आपके सोडियम वाटर रिटेंशन होगी. इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट विल कॉज द एडिमा. फिर आ जाती है आपकी इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन में एक्यूट इन्फ्लेमेशन साइंस किए थे तो क्या किया था, रेडनेस होती है, पेन होती है, टेम्परेरी स्वेलिंग. दैट स्वेलिंग क्योंकि वहां पर वेसल्स, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारी वेजो डायलिटेशन होती है, एंडोथेलियम के इन बिटवीन एंडोथेलियम बॉन्ड लूज होता है ताकि ये आपके सेल्स जो है इन्फ्लेमेटरी सेल वो ब्लड वेसल से मूव आउट कर सके. सो दैट विल आल्सो कॉज एडिमा. एंजियोजेनेसिस, जब न्यूली वेसल्स फॉर्म होती है, आप रिपेयर हीलिंग में भी करोगे कि न्यूली फॉर्म वेसल्स जो होती हैं वो व्हेन दे आर लीकिंग, उसमें से फ्लूइड आउट कर रहा होता है. सो जब एंजियोजेनेसिस हो रही हो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, अगेन देयर इज ए एडिमा फॉर्मेशन. कॉजेज को देखते हैं. इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होगा, या आइदर लोकलाइज होगा या फिर जनरलाइज होगा. लोकलाइज तो तब होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपका जो है वो क्या हो जाए कि वहाँ पे आपकी जो है ब्लड सप्लाई जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए. उसमें मोस्ट कॉमनली आ जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस. इसके डीप वेन्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहे होते हैं. अब ये देखो अभी हमें यानी कि एक एडिमा की कॉज है थ्रोम्बस के उसकी वजह से हो सकती है थ्रोम्बस. तो अब हम जब नेक्स्ट जब लेक्चर करेंगे उसमें हम इंफॉर्मेशन करेंगे कि ये क्या है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एबनॉर्मल थ्रोम्बोसिस. तो वी विल गो फॉर दैट. फिर हम उसमें आ जाते हैं लोकलाइज लेग्स में स्वेलिंग हो रही होती है, और जनरलाइज जब व्हेन आवर पंप इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग. कौन है हमारा बॉडी में पंप, पंप कौन है हमारा बॉडी में, जो जो ब्लड को पंप करता है, हार्ट है. सो व्हेन देयर इज ए हार्ट, तो हार्ट में जब क्या होगा है, जब व्हेनेवर देयर इज ए डिफेक्ट इन आवर पंप, दैट इज कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर. जब हमारा कार्डिक फेलियर जनरलाइज बॉडी एडिमा, जनरलाइज आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि पंप प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा. सारे आपके डाउन स्ट्रीम जो है सारी एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो रही होगी, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा. दैट वे तो इसलिए कार्डिक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स की जो है बात कर लिए है. अब अगर एल्ब्यूमिन अगर या लॉस्ट हो रहा हो या सिंथेसिस उसकी डिक्रीज है या इनटेक डिक्रीज है, दे ऑल लीड्स टू द क्या होगा एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. दिस इज द एसाइटिस. ठीक है, ये कैविटी इज कॉल्ड एसाइटिस. दिस इज कॉल्ड पेरीऑर्बिटल एडिमा. ये जो है मोस्ट कॉमनली रीनल कॉजेस में जो है पेरीऑर्बिटल एडिमा हो रहा है. तो ड्यूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा होता है ड्यू टू द डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर. किडनी डिजीजेस में जो है दे आर रीनल डिजीजेस में देयर इज ए accumulation of the fluid in around the periorbit. So this is called periorbital. ये वन ये आपने पिक्चर बहुत देखी होगी कि मेल नरिश अफ्रीकन है लेकिन के जो है एब्डोमेन प्रोट्यूबरेंट है. दे आर नॉट द हेल्दी. इनको ascites हो रही है and that ascites are due to the decreased protein intake. Malnutrition results in a ascites. So this is that protuberant abdomen is due to the ascites, not due to the good health. ठीक है, अब आप ये मुझे बताओ कि क्या होगा. एक पेशेंट को प्रोटीन इनटेक डिक्रीज है, प्रोटीन इनटेक डिक्रीज है, उसका फ्लूइड टिश्यू में एक्यूमुलेट हो रहा है. जब फ्लूइड उसका टिश्यू में एक्यूमुलेट हो रहा है यानी कि वट एवर वो बैक टू जो भी आर्टीरियल एंड के ऊपर रिमूव हुआ था फ्लूइड वो बैक नहीं हुआ वीनस एंड के ऊपर, तो क्या होगा उसके ब्लड वॉल्यूम को क्या होगा,
What happened to its blood volume? Anyone? ऑस्मोटिक प्रेशर जी क्या होगा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से फ्लूइड जी मूव आउट कर गया। जब फ्लूइड मूव आउट हो गया तो बेटा फिर क्या होगा? उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होगा या नहीं होगा? मैम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो नहीं। डिक्रीज होगा ना बेटा, क्योंकि उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जी अब आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि ये देखो, कॉज क्या है हमारे पास से प्रोटीन है कि हमने प्रोटीन इनटेक नहीं है या सिंथेसिस नहीं है। अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, प्रोटीन इनटेक नहीं है, तो क्या होगा? व्हाट हैपन कि हमारा जो है फ्लूइड मूव होगा, पेशेंट को एडिमा होगा, यही होगा ना। अब जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा इन इंटरस्टिशियल टिश्यू तो उसका ब्लड क्या होगा? ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक होगा, तो हमारा जो वाइटल ऑर्गन है जिसने ये सब कुछ मेंटेन करना है वो कौन सा है? किडनी। किडनी क्या होगा? किडनी को क्या होगी? लेस परफ्यूजन होगी। लेस परफ्यूजन होगी होगी तो वो क्या करेगा? इट विल ट्राई कि जो है कंपनसेट करे। कंपनसेट में वो क्या करेगा? मोर वाटर रिटेंशन करेगा। मोर वाटर रिटेंशन की तो वो क्या होगा? मोर वाटर मूव्स आउट, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो मेन कॉज हमारी कोई फ्लूइड वॉल्यूम की तो नहीं है ना। तो क्या होगा कि वो क्योंकि किडनी को ये लगेगा कि मुझे परफ्यूजन कम मिल रही है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज डिक्रीज। जब वो उसको फर्दर वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा थ्रू सोडियम वाटर एल्डोस्टेरोन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल रिजल्ट कि वो उसको मोर वाटर रिटेंशन होगी। तो अब क्या हो रहा है कि कॉज हमारी प्रोटीन लॉस है, लेकिन ये रीनल अपना सिस्टम डाल के क्या करेगा? हमारा एडीमा को वर्सन करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे इसलिए जो अभी उस वक्त से हम लोग कॉजेज करें, दिस इज द इम्पोर्टेंस के वाई वी शुड नो द कॉज। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये कि कॉज वी शुड नो द कॉज के क्या कॉज है एडीमा की, वी हैव टू फाइंड। आप अगर मेल न्यूट्रिशन वाले को जस्ट कहेंगे नहीं इसका फ्लूइड कम है तो आप इसको फ्लूइड पे फ्लूइड देते रहोगे तो क्या होगा? उसकी वो नहीं होंगी अनलेस एंड अनटिल उसका डीमा नहीं सेटल डाउन होगा, अनलेस एंड अनटिल कि आप उसको जो है प्रोटीन सप्लीमेंट ना करो। दैट्स वाई द कॉजेज ऑफ एडीमा कहने को एक सिंपल डिजीज है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप यू शुड नो द कॉज। क्योंकि जब वाटर रिटेंशन होगी तो वही इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करेगा, और जब इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डिक्रीज होता जाएगा और फिर फर्दर आपका सिस्टम जो है वर्सन होगा। ये एक आपकी रॉबिन्स में पैथोजेनेसिस की बहुत अच्छी डायग्राम है, ये आप लोग अगर कर लो तो ये आप लोगों का सारा पैथोजेनेसिस। अब आप ये देखो कि हार्ट फेलियर हुआ पेशेंट को, हार्ट फेलियर की वजह से बैक प्रेशर। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बेटा आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा अब आपको ठीक है, अब हार्ट फेलियर हो रहा है, हमने अभी पहले बात की थी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। तो जब हार्ट फेलियर होगा तो क्या होता है? सबसे जिसने एडीमा करना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और द प्रोटीन्स। ठीक है, हम पहले अपने पहले फोर्स को देखते हैं। अगर आप देखो कि हार्ट फेलियर हुआ है पेशेंट को, बैक प्रेशर इंक्रीज हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, इट विल लीड्स टू एडीमा। अब हार्ट फेलियर हुआ, यहाँ पे आपकी रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, उसको फॉल्स इंप्रेशन मिला कि शायद फ्लूइड कम है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपका इंक्रीज हुआ, रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर हुआ, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। फोकस कर ले मैम। बेटा मेरी स्लाइड फोकस ही है बेटा। मैम इसको ओपन करते हैं तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ये। बेटा वो तो सही है वो। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, ये देख लें कि ये हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर में अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा हार्ट फेलियर में, दैट विल लीड्स टू एडीमा। फिर क्या हो रहा है कि रीनल, अब रीनल को जो है देर इज ए क्या हो रहा है? डिक्रीज परफ्यूजन हो रही है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है
वो आपकी एक्टिवेट होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन अगेन होगी और इट विल इंक्रीज फर्दर इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। जब फर्दर इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम होगा आपकी कंडीशन जो है फर्दर जो है वो क्या होगी, वर्स हो जाएगी। अब सेकेंड उसमें देखें कि अगर आपकी मेल न्यूट्रिशन है, सिंथेसिस डिक्रीज है या लॉस हो रही है प्रोटीन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन जो है दैट विल डिक्रीज और वो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज होगा, इट विल अगेन लीड टू एडीमा। अभी जो मैंने आपको बात की थी वो ये की थी कि अब जब ये वाला एडीमा हो रहा होगा तो ये अगेन इसको यहाँ पे ये सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये करेक्शन नहीं हो रही होगी, ये क्या होगा, ये फर्दर वर्सन द एडीमा। अब आप जो मर्जी किडनी कर ले यहाँ पे ये एडीमा होता रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप इस वाले सिस्टम को करेक्ट नहीं करोगे। ये वाला एडीमा आपका सेटल डाउन, ना ये वाला एडीमा सेटल डाउन होगा ना ये वाला, ड्यू टू दिस कॉज रीनल कॉज की वजह से भी एडीमा सेटल डाउन नहीं होगा। दैट्स वाई द कॉज की इंपॉर्टेंस है। आप ये वाली कॉज है, आप इसके लिए आप जो मर्जी कर लो, जब तक आप इस कॉज को रिमूव नहीं करोगे आपका एडीमा सेटल नहीं होगा। इधर आप कहोगे कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, आप प्रोटीन्स उसको देते रहो तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं, उसका वो सेटल है जब तक अनलेस एंड अनटिल आप उसके हार्ट फेलियर को ट्रीट नहीं करोगे। दैट्स वाई द कॉज ऑफ द एडीमा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर थर्ड हमने किया था लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में आपको ये हो गई क्लियर, आपको दोनों कॉजेज हाइड्रोस्टैटिक का और उसका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है? अब हम आ जाते हैं लिम्फेटिक्स पे। पैथोजेनेसिस समझ आ गया आप लोगों को, हाइड्रोस्टैटिक की और के क्या ये सारा किस तरह ये साइकिल चलता है। जी मैम। नाउ वी कम टू द लिम्फेटिक। लिम्फेटिक्स में एक आपको चीज दैट इज द होती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन नियोप्लास्टिक। एक पैरासाइट आप लोग करोगे दैट इज द फ्लेरिया। फ्लेरिया पैरासाइट फ्लेरियासिस में क्या होता है, लिम्फ नोड फाइब्रोसिस हो रही होती है स्पेशली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड दैट उसमें फ्लेरिया की वजह से लिम्फेटिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, दिस उसका एडीमा हुआ है तो उसकी थिक एंड स्किन हो गया है, दैट अपीयरेंस लाइक अपीयरेंस ऑफ एलिफेंट फीट, तो इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। दिस इज द नॉर्मल लेवल, यू कैन सी दिस इज एलिफेंटियासिस। सेकेंडली हमने किया था पोस्ट सर्जिकली। पोस्ट सर्जिकली जो है ये स्पेशली पहले हम नियोप्लास्टिक कर लेते हैं कि नियोप्लास्टिक सेल्स अब ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, अगेन देयर इज एडीमा, थिकनिंग हो रही है, फिटिंग हो रही है। उसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट इज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर में सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू द नियोप्लास्टिक सेल्स तो ओवरलाइंग स्किन का एडीमा हो जाता है, पिटिंग अपीयरेंस देती है एंड दैट अपीयरेंस इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज पील, इसको भी कॉल देम प्यूडी ऑरेंज स्किन। ये अपीयरेंस हो जाती है, इसको प्यूडी ऑरेंज कहते हैं कि अगर आप इससे अब कंपेयर करो जस्ट लाइक अ पील ऑफ एन ऑरेंज, तो दिस इज द प्यूडी ऑरेंज स्किन। इसमें ये नियोप्लास्टिक सुपरफिशियल जो लिम्फेटिक्स होते हैं दे आर बीइंग obstructed बाय द नियोप्लास्टिक सेल्स। फिर पोस्ट सर्जिकली व्हेन देयर इज एक्सेसिव रिमूवल ऑफ द लिम्फेटिक्स आफ्टर पोस्ट सर्जरी और पोस्ट रेडियोथेरेपी, ये भी मोस्ट कॉमनली आप कैंसर पेशेंट में देखोगे, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द आर्म और उसको लिम्फेडिमा ऑफ द आर्म कहते हैं। नाउ यू कैन कंपेयर, दिस इज द नॉर्मल आर्म and this is on this side surgery is done on this side of the breast, तो आप देख लो there is accumulation, axillary clearance हुई हुई होती है तो there is accumulation of the fluid in the arm और ये जो है this is called, it is one of the most common post surgical and the post radiation complication in a breast cancer patient which is it is called lymphedema of the arm. There is a term when there is a generalized edema of the body, subcutaneous tissue में accumulation of the fluid in body cavities, there is also accumulation that is called anasarca. This is the generalized accumulation, generalized edema होता है, this is called anasarca.
ये आपको टर्म पता होना चाहिए कि NSRका इज अ जनरलाइज्ड एडिमा of the and collection of the in a subcutaneous tissue in a body cavities. This is called NSR. हाँ जी, यहाँ तक हो गई आपको टर्म्स क्लियर। आपको प्यूडियोरेंस स्किन का पता होना चाहिए, एलिफेंटिएसिस का पता होना चाहिए, एनासार्का का पता होना चाहिए। नाउ वी कम टू आवर मॉर्फोलॉजी। मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, एक तो दैट इज द सबकुटेनियस टिश्यू, लंग आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, देन डिपेंडिंग अपॉन द, तो जो है इसमें क्या होगा कि ग्रॉसली क्या होगा, व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन क्या हो रहा होगा ग्रॉसली? हाँ जी, ग्रॉसली क्या हो रहा होगा? हाँ जी बेटा, क्या हो रहा होगा? खुद बताओ, हमने लास्ट टाइम किया था। फ्लूइड का क्या हो रहा होगा? क्या होगा? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया तो क्या होगा? वेट इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा ऑर्गन का, फिर वहां पे यू हैव द वेट लुक, ये अपीयरेंस आ जाएगी। माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा कि उन सारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के ऊपर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा और देयर इज ए सेपरेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो सबकुटेनियस एडीमा है वो मोस्टली जो है उन एरियाज में ज़्यादा होता है जो दे आर बिलो द हार्ट। उसमें क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमनली लेग्स में, सेक्रम में, इन एरियाज में जो है देर इज ए accumulation of fluid in subcutaneous tissue. इसको depending edema भी कहते हैं, क्योंकि due to dependent parts पे due to effect of gravity which is away from the heart, below the heart जो होते हैं, in those organ जब areas के ऊपर there is accumulation of fluid, it is called dependent edema. ठीक है जी। एक टर्मिनोलॉजी होती है पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज पिटिंग एडीमा? हाँ जी बेटा, व्हाट इज पिटिंग एडीमा? मैम अगर हम प्रेस करें स्वॉलन एरिया को तो फिर डिप्रेशन बन जाता है। वेरी गुड। हाँ, जब हम प्रेस करते हैं एरिया को और उसके बाद हम जब रिमूव कर देंगे अपनी फिंगर को, तो दैट पिट रिमेन फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। ये पिट इस तरह स्ट्रेन करेगा फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं तो वाटर जो आपका होता है इन एरिया प्लेन्स में वो मूव सराउंडिंग में मूव कर जाता है, पिट फॉर्मेशन होती है, एंड व्हेन वी रिमूव द प्रेशर दैट विल रिमेन फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। ये पिट जो है इट विल रिमेन। मोस्ट कॉमनली कॉजेज में आ जाती हैं हार्ट वेल्व प्रॉब्लम है, प्रोटीन लेवल्स हैं, डीवीटी है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, एंड देन देयर इज ए प्रेगनेंसी। इसमें जो है दे आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द पिटिंग एडीमा। पेरीऑर्बिटल एडीमा आपको मैंने बता दिया कि रीनल डिजीजेज में आपका पेरीऑर्बिटल एडीमा हो रहा होता है, आईलेट्स के अराउंड होता है। सेकेंड ऑर्गन में जहाँ मोस्ट कॉमनली एडीमा हो रहा होता है ब्रेन एडीमा, इट इज़ वन ऑफ द फेटल कॉजेज, क्योंकि अगर तो लोकलाइज है तो वो सिर्फ लोकलाइज आपके चलें सिम्टम्स होंगे, लोकलाइज एरिया ऑफ द ब्रेन टिश्यू जो है दैट विल बी प्रेशराइज्ड, वो डैमेज होगा। वेयर एज जो जनरलाइज एडीमा होता है उसमें जनरलाइज एडीमा में क्या हो रहा होता है कि आपकी होल एरिया जो है वो इंक्रीज होता है। अब स्कल क्या है? स्कल इज अ क्लोज कंपार्टमेंट, तो वहाँ से व्हेन देयर इट इज सीवियर टाइप ऑफ एडीमा, तो सीवियर ब्रेन एडीमा में फिर हर्निएट होगा ब्रेन फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम, एंड दैट विल लीड के उसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होंगे। पल्मोनरी एडीमा अगेन इट इज़ वन ऑफ द ग्रॉस कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसमें वेट एक तो इंक्रीज हो जाएगा लंग का ग्रॉसली, और इसमें आपको ब्लड रिंच फ्लूइड मिलेगा, और उस वो फ्लूइड में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ एयर होगी, फ्लूइड होगा और आरबीसी। इस तरह ये कलेक्शन हो रहा होता है एल्वुलर स्पेसिस में। ठीक है बेटा, एडिमा फ्लूइड होगा, एल्वुलर स्पेसिस में कंजेस्टेड वेसल्स होंगे, आरबीसीज भी आ जाएंगे। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था पल्मोनरी एडिमा कि इट इज जो है ना ग्रॉस कॉम्प्लिकेशन है, ग्रॉस डिजीज है, फेटल डिजीज है। व्हाई इट इज? एनीवन? कि क्यों हम पल्मोनरी एडिमा को इतना कहते हैं कि फेटल कॉज है, ये है, पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करना चाहिए? एनीवन? क्यों? एनीवन को इसको बताया क्यों मैंने ये बात कही थी कि पल्मोनरी एडिमा इज
डिजीज। क्या करेगा, क्या फंक्शनिंग में डेफिसिट होगा अगर फ्लूइड आ जाए? हाँ जी जी जी। जैसे वेंटिलेशन नहीं हो सकेगी। वेंटिलेशन नहीं होगी। जब एल्वुलर स्पेसिस में आपका मेन, बेटा शाबाश, एल्वुलर स्पेसिस में आपका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये कि एल्वुलर स्पेसिस में एयर जो है आपकी ट्रांसफर होनी है, कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है विद द ब्लड। अब जब फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो वो आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही होगी। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी तो आपकी वेंटिलेशन, आप सारी बॉडी, होल बॉडी हाइपोक्सिया हो रहा होगा और आपकी जो है बॉडी की ऑक्सीजनेशन डिस्टर्ब होगी। इसीलिए अगर आप लोग, अगर कोई, वैसे मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप कभी करें पल्मोनरी एडिमा के हमेशा, आप अगर कई दफा देखो, इसकी एक टिपिकल वो हिस्ट्री देते हैं पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट कि जब हम लाई डाउन करते हैं हमें सांस नहीं आता, उठ के बैठ जाए ना तो सांस आते। अब आप लोग जब कब आओगे वार्ड्स में, आप देखोगे कि मेडिकल जो कार्डियो में पेशेंट को कई ऐसे मिलेंगे कि उनकी ऑक्सीजन लगी हो गई एंड दे आर सिटिंग, वो सिटिंग और वो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ना झुके हुए होते हैं। द रीजन बीइंग इज दैट कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उनके जो है फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट होगा? लोअर स्पेस, एल्वुलर स्पेसेस में। अपर जो एपिसिक्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ से ऑक्सीजनेशन हो रही होगी। इसलिए ये पेशेंट की एक टिपिकल हिस्ट्री ये होती है कि जब हम सीधा बिल्कुल लेटते हैं रात को तो हमें सांस नहीं आता, उठ के बैठे तो सांस आने लग जाता है। ये एक बहुत टिपिकल हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी एडिमा की। इसीलिए आप अक्सर वैसे अपने मूवीज वगैरह में देखोगे कि जी एक आईसीयू का दिखाया होता है कि उसका बेड इस 45 के एंगल के ऊपर होता है, ऑक्सीजन लगी होती है। ये 45 का एंगल इसीलिए रखा होता है कि एट 45 एंगल आपका जो ये सारा फ्लूइड होता है एल्वुलर स्पेसिस से लोअर एल्वुलर बेसिस के ऊपर एल्वुलर स्पेसिस में कलेक्ट हो जाता है, एपिसिस क्लियर हो जाती है, वहां से फिर ऑक्सीजनेशन होती है, साथ फिर सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। सो दैट्स वाई अक्सर आईसीयू के आपके अगर कोई आप देखोगे कि वहाँ पे पेशेंट्स जो अगर पल्मोनरी एडिमा के हैं तो उनके बेड को जो है 45 के ऊपर करते हैं। सो पल्मोनरी एडिमा मोस्ट कॉमनली सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अदर कॉजेज में रीनल फेलियर आ जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, डिफरेंट इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं, और ये क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूजन के साथ करते हैं तो इसमें डेथ के चांसेस है। इन एडिशन टू दैट अगर डेथ नहीं तो एल्वुलर एडिमा जो है इन्फेक्शन जो है उसमें क्योंकि क्या हो रहा है, फ्लूइड आपकी जो है इंटरफेयर कर रहा होता है, दैट वे इट विल रिजल्ट के उसमें जो है कॉज ऑफ डेथ हो जाती है। और अगर और इन एडिशन टू दैट एल्वुलर एडिमा आल्सो फेवर्स द इन्फेक्शंस। अब ये जो हमारे डायग्नोस्टिक इसमें फ्लूइड की इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट कि जब आप कल्स में जॉब फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड जो है एग्जामिनेशन या साइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन, इसके इम्पोर्टेंस जो है फॉर क्लिनिकल, इसमें ये कि आप जब लैब में ये फ्लूइड सेंड करते हो दे विल फाइंड आउट कि ये ट्रांसुडेट है या इट इज एक्सुडेट। अब ये दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, या आइदर इट इज अ ट्रांसुडेट और इट इज अ एक्सुडेट। जो ट्रांसुडेट होता है उसमें मोस्टली ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ड्यू टू द डिक्रीज इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ये पेल कलर का होता है, प्रोटीन पुअर होता है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिकॉज इट इज अ प्रोटीन पुअर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज लेस देन, दैट इज 1.012, इट इज लेस देन 1.012। और ट्रांसुडेट होगा, इट मीन्स कि आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज ढूंढनी है या प्रोटीन इनटेक को देखना है। बट इन इफ इट इज एक्सुडेट, एक्सुडेट क्या होता है, वो पसी कलर का, पसी सा होता है, प्रोटीन रिच होता है, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स इट इज मोर देन 1.020। सो जो अगर लैब आपको एक्सुडेट की रिपोर्ट देती कि इट मीन्स कि आप यू कैन लुक फॉर सम इन्फ्लेमेटरी कॉज, उसमें कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज को यू हैव टू लुक फॉर जस्ट विद दिस फ्लूइड एग्जामिनेशन आप उससे अपनी डिफरेंशियल्स कर सकते हैं कि आइदर इट इज ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन और ऑस्मोटिक प्रेशर की डिक्रीज की वजह से, और इट इज ड्यू टू सम इन्फ्लेमेटरी कॉज। तो अब ये दोनों के आपको डिफरेंसेस जो है यू शुड नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के जो डिफरेंसेस है
ये आपको कई दफ़ा एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, आपको ये करना होता है कि आइदर द फ्लूइड इज एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, या आपको सिनेरियो में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाएगी, कहेंगे सेल्स नज़र आ रहे हैं, फिर आपको उसमें से कॉजेज करनी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ इट इज़ एक्सुडेट तो कॉजेज इन्फ्लेमेटरी होगी, इफ़ इट इज़ अ ट्रांसुडेट फिर उसमें आपके या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉज होगी और इट इज़ ड्यू टू सम deficiency. So ये चीज़ों की इसमें importance है. With this we will going to end with this topic of edema. आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें।